Shaitanir-Rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. First of all, it is my great pleasure to welcome you all to our first online session on COVID-19 challenges and practices in education sector. We are very grateful to our guest speaker, Mr. Shakil Ahmed, who is a renowned e-learning and IT trainer and a seasoned educational consultant. Mr. Shakil Ahmed is currently working in the Ministry of Higher Education in the Kingdom of Saudi Arabia. He is also affiliated with the Deanship of E-Learning and IT at Jazan University in Saudi Arabia. Before coming to close my remarks, I would like to remind you all that we are in the global pandemic situation. It has affected almost everyone around the globe, and the same effect has been observed in our education sectors. Nevertheless, we are practicing of carrying forward the academic activities, including the online classes and exams, yet we are facing numerous hurdles during these online activities. It is a dire need of the time to understand and cope with the situation in order to make our online activities more effective and fruitful instead of taking it as a formality only. This session will include sort of precious tactics and some useful tips for the teacher or instructors for conducting their online classes in a more meaningful way. We can learn today how to handle the shortcomings and to turn the weaknesses to our strengths. It is thus important to keep our eyes on the objectives we are chasing during our semester time. For the students, you will have much more to learn while keeping yourself very active in the online classes. Most of the time, you are facing issues and specific the technical issues, the distractions, the time management, and motivations for the classes. You will learn how to cope with it and how to improve your interaction with the instructors in order to learn more and thus gain more. In the last, I hope you will enjoy this session. I am going to thanks once again to our distinguished guest speaker, Mr. Shakil Ahmed, and I'm going to hand over the mic to him without any further ado to start the session. Mr. Shakil Ahmed sir. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Good morning, everyone. Hope you all doing good. And thanks for joining the session. I'm Shakil Ahmed. I'm working with Ministry of Higher Education, Saudi Arabia. I am affiliated with Jazan University. I'm e-learning consultant, and being head of training department, my responsibilities are to organize the different type of trainings for e-learning, and especially for LMS, Learning Management System. Here in Jazan University, even in all the Middle East, we are using Blackboard as a LMS system, and we are doing practices, especially after pandemic, and have a very good session with this one. And I'm going to share some knowledge related to what we experienced here. Before start the session, I would like to thanks special thanks to Dr. Mushtaq Sab or Mohammed Kamran Sab to invite me for this special session and very important session. I believe after COVID-19, this type of sessions are playing a vital role to improve the education in higher education. इस सेशन से मुतल्लिक हम लोग थोड़ा सा मतलब लाइक मैं स्टार्ट लेने से पहले कुछ चीज़ें डिस्कस करना चाहता हूँ कि जो हमारे एम हैं वो क्या हैं और मेन हम इससे आउटकम्स क्या लेना चाहेंगे. हमारी कोशिश होगी कि ये एक जो शॉर्ट सेशन हम ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं इसको मैक्सिमम प्रोडक्टिव बनाया जाए. आपके लिए कुछ ऐसी जो सजेशंस और सॉल्यूशंस लेके आएंगे कि जो आपकी ई लर्निंग से मुतल्लिक जो आइडियाज़ हैं या जो अभी तक आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनसे कैसे निपटा जा सकता है, वो सारी की सारी चीज़ें हम लोग आज डिस्कस करेंगे. मोस्ट इम्पोर्टेंटली क्योंकि मैं यहाँ पे सऊदी अरेबिया में लास्ट 10 ईयर्स से आई बिलोंग्स टू डीनशिप ऑफ ई लर्निंग एंड IT, and we do have a lot of experience and expertise especially with the e-learning. So हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि डेवलप कंट्रीज लाइक सऊदी अरेबिया इन्होंने पेंडेमिक में एजुकेशन सेक्टर को और स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स हाउ दे डील विद दिस काइंड ऑफ चैलेंजेस, और जो अंडर डेवलप कंट्री स्पेशली पाकिस्तान वहाँ पे कोविड-19 के दौरान क्या चैलेंजेस आए और क्या प्रैक्टिसेस रहीं और उसमें क्या इम्प्रूव किया जा सकता है इन कंपेयर टू सऊदी अरेबिया. तो हम लोग अपना सेशन स्टार्ट लेते हैं और सेशन का हमारा टाइटल है कोविड-19 challenges and practices for higher education institutions.
Here is our agenda for this session. हम लोग जैसा कि मैंने कहा कि हम लोग कोशिश करेंगे कि जो शॉर्ट टाइम हमें दिया गया है इस शॉर्ट टाइम को यूटिलाइज करें और प्रॉपरली हम लोग इस चीज़ को समझने की कोशिश करें कि ई लर्निंग है क्या। जो ई लर्निंग हम समझ रहे हैं कि जूम के जो आप ऑनलाइन सेशंस लेते हैं या एम एस टीम्स के थ्रू आप वर्चुअल क्लासरूम्स में लॉग इन होकर आप कुछ स्टडीज़ करते हैं या लेक्चर ले रहे हैं, आया वो ही सिर्फ ई लर्निंग है या ई लर्निंग इज समथिंग डिफरेंट। और ई लर्निंग के साथ क्यों ऐसी जरूरत पड़ गई कि सडनली ई लर्निंग विच वाज नॉट अ प्राइमरी लीडिंग पार्टनर फॉर द एजुकेशन सेक्टर, बट वो अब अचानक वो प्रीमियर मोड में चला गया और प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम बन गया। और सडनली ये प्रीमियर एजुकेशन सिस्टम बनने की वजह से उसमें क्या चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ रहे हैं, क्योंकि हम लोग उसके लिए प्रिपेयर थे या नहीं थे, ये हम चीज़ें डिस्कस करेंगे। और एट द एंड हम लोग ये देखेंगे कि बीइंग आईटी एक्सपर्ट, बीइंग ई लर्निंग एक्सपर्ट, क्या सजेशन हो सकती हैं और क्या सोल्यूशन हो सकते हैं और किस तरह हम इस चीज़ को ओवरकम कर सकते हैं। अगर ई लर्निंग की बात की जाए तो नॉर्मली जो हमारा कॉन्सेप्ट है या जितना हमने एक छोटा सा सर्वे किया पाकिस्तान के हवाले से, वहाँ पे यही कॉन्सेप्ट ज़्यादातर है कि जूम के थ्रू हम लोग क्लासेस ले रहे हैं। एंड सम कॉलेजेस हैज डिप्लॉयड देयर सिस्टम, मीन लाइक जो अच्छे कॉलेजेस हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं या जो यूनिवर्सिटीज लेवल के ऊपर हैं, दे आर रनिंग देयर ओन एलएमएस सिस्टम। लेकिन बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो सिर्फ जूम और एमएस मीटिंग्स या इस तरह के कुछ और प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको यूटिलाइज करके अपने स्टूडेंट्स के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ जूम के थ्रू क्लासेस लेना इज नॉट एन ई लर्निंग। वो एक पार्ट है, लेकिन ई लर्निंग डजंट जस्ट हैपन, इट रिक्वायर्स केयरफुल प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। और उसमें आपका प्रॉपर क्या होता है कि जिस वक्त आप प्रॉपर एक एलएमएस यूज करते हैं, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, तो उसमें स्टूडेंट्स का कंप्लीट स्टडी रिकॉर्ड है वो रखा जाता है। उसके साथ साथ आपकी जितनी ऑनलाइन आपका कंटेंट शेयरिंग हो रही है उसका रिकॉर्ड होता है, आपके लेक्चर रिकॉर्ड हो रहे होते हैं, उसमें आपके वर्चुअल लेक्चर्स भी ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। और आपको ये बताता चलूँ कि तकरीबन इस वक्त मार्केट के अंदर मोर देन 800 एलएमएस वेंडर्स आर अवेलेबल। हर एक ये इसमें प्रॉमिस करता है कि वी आर ऑफरिंग अ लॉट ऑफ टूल्स एंड लॉट ऑफ बेनिफिट्स, लेकिन सबसे अच्छा एलएमएस सिस्टम वही होता है जो आपका यूजर फ्रेंडली हो। और मैक्सिमम जितने भी एलएमएस सिस्टम हैं वो वर्चुअल क्लासरूम के लिए थर्ड पार्टी टूल यूज करते हैं, जैसे कि जूम हो गया या कोई और उसमें आपका वर्चुअल जो उनका डिफरेंट पैरामीटर्स को यूज करते हुए डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। तो अभी हम ये चीज देखेंगे कि अगर आप थर्ड पार्टी टूल यूज कर रहे हैं वर्चुअल क्लासरूम के लिए तो उसमें क्या चैलेंजेस हैं या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। और अगर वो वेंडर जो एलएमएस बिल्ड कर रहा है या बना रहा है, डेवलप कर रहा है, वो अपना बिल्ट इन वर्चुअल क्लासरूम अगर वो देता है तो उसमें क्या बेनिफिट्स हम ले सकते हैं। अगर ई लर्निंग की हिस्ट्री देखी जाए तो ई लर्निंग का तो नॉर्मली जैसे हमने कहा कि अभी का ई लर्निंग का कॉन्सेप्ट और एक्चुअल ई लर्निंग का कॉन्सेप्ट किस तरह डिफरेंट है कि 1960s में आपके ई लर्निंग का वजूद उसी वक्त आ गया था जिस वक्त फर्स्ट कंप्यूटराइज ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था। फिर ये स्टेप बाय स्टेप अपने डिफरेंट एवरी 10 years जो उसमें चेंजेस आती गई वो आती गई, लेकिन एक बूस्ट लाइन में या फ्रंट लाइन में ई लर्निंग उतना ज्यादा कभी भी नहीं आया जितना लाइक हम देखते हैं कि 2010 के बाद इसमें थोड़ा सा बूस्ट आया, स्पेशली जिस वक्त आपके स्मार्टफोन्स इंट्रोड्यूस हुए विद बेस्ट ग्राफिक्स और बड़ी स्क्रीन के साथ, और उसमें आपका इंटरनेट की फैसिलिटी भी अलाउ हुई। तो उस वक्त क्योंकि आपका डेस्कटॉप और लैपटॉप से हट के आपके पॉकेट में एक ऐसी डिवाइस आ गई जिसमें इंटरनेट भी अवेलेबल था, जिसकी स्क्रीन भी बड़ी थी। तो उन स्मार्ट डिवाइसेस को यूज करते हुए एक नई वेव जो है वो डेवलप हुई, और वो वेव क्या थी? मोबाइल बेस्ड ई लर्निंग। वहां से ई लर्निंग प्रोमोट होना शुरू हुई, लेकिन फिर भी इसको कभी भी फ्रंट लाइन आप कह सकते हैं प्लेटफॉर्म के तौर पे नहीं देखा गया, बल्कि
इसको नॉर्मली यही होता था कि डिस्टेंस लर्निंग के लिए मैं वर्किंग हियर विद जज़ान यूनिवर्सिटी सिंस 2011 और मैं शुरू से ही इसी ई लर्निंग डिपार्टमेंट से बिलोंग करता हूं और हमारे सामने ये डेवलप हुआ एंड आई कैन सेफली से कि 2010 से 2020 तक इंफ्रास्ट्रक्चर तो अवेलेबल थे लेकिन उसको सिर्फ डिस्टेंस लर्निंग के स्टूडेंट्स के लिए किसी हद तक और ई लर्निंग जो रेगुलर स्टूडेंट्स हों उसको एक पार्शियली कुछ हद तक यूज किया जाता था लेकिन उसको प्राइमरी प्लेटफॉर्म के तौर पे कभी भी नहीं देखा जाता था। बल्कि ये कह सकते हैं कि ई लर्निंग प्लेटफॉर्म को कभी भी फेस टू फेस जो लर्निंग है उस पे फोकियत नहीं दी गई बल्कि उसको कभी ये समझा ही नहीं गया कि ये अल्टरनेटिव भी हो सकता है। फिर 2020 आ गया, फिर कुछ ऐसा हुआ, वो क्या हुआ कि आपका सेकेंडरी समझा जाने वाला एक ऐसा सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग सिस्टम जो कि डिस्टेंस लर्निंग के लिए यूज हो रहा था, वो सडनली वो इतना इम्पोर्टेंट हो गया, एक ऐसा अल्टरनेटिव आपके सामने आ गया कि जिसकी वजह से आपने उसको एक कंप्लीट अल्टरनेटिव के तौर पे देखना शुरू कर दिया और यहाँ पे हम लोग आपको दिखाते हैं कि वो क्या रीजन थी। अच्छा, 2020 में क्या ऐसा हुआ? अब हम तकरीबन 1 साल गुज़र जाने के बाद हम कोविड-19 पैंडेमिक को बड़ी अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अगर यही क्वेश्चन 1 साल पहले किया जाता, तो शायद ये इतना क्लियर क्वेश्चन ना होता कि ये 2020 में क्या ऐसा हुआ कि जो हमारी ई-लर्निंग है, वो एक ऐसा प्रीमियर एजुकेशन सिस्टम के तौर पे फ्रंट पे आई। तो इसके लिए हमारी टीम ने एक छोटी-सी वीडियो तैयार की है, वो हम आपको दिखाते हैं और इसके बाद इस पे डिस्कशन करते हैं। अच्छा, हुआ क्या कि ये इस छोटी-सी वीडियो के अंदर हम लोगों ने ये थोड़ा-सा आपको डिस्प्ले करने की कोशिश की है कि एकदम बिल्कुल नॉर्मल लाइफ से सडनली क्या हुआ कि सब चीज़ें जो है वो क्लोज़ होना शुरू हो गई। क्लोज़र ऑफ शॉपिंग मॉल्स, क्लोज़र ऑफ ट्रैफिक, एयरप्लेन्स एंड क्लोज़र ऑफ द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एज़ वेल। लेकिन जिस वक़्त हम लोग ये समझते हैं कि आई बिलीव कि जिस वक़्त 2020 की न्यू ईयर नाइट हम लोग मना रहे थे, तो कोई भी ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इन कमिंग मंथ्स में क्या डिजास्टर होने वाला है। शुरू में यही न्यूज़ आई कि चाइना के अंदर एक वायरस, एक कंटीजियस वायरस जो है वो है वहाँ पे और जिसकी वजह से प्रॉब्लमैटिक जो लाइफ हो रही है। लेकिन शुरू में हम लोग यही समझते रहे कि वो एक एपिडेमिक है, सिर्फ चाइना में स्टार्ट हुआ है और चाइना में ही खत्म हो जाएगा और बाकी दुनिया उससे अफेक्ट नहीं होगी। लेकिन इन कमिंग 2 और 3 मंथ्स जब डब्ल्यूएचओ ने ये अनाउंस किया कि इट्स नॉट अ एपिडेमिक, इट्स अ पैंडेमिक, तो वहाँ पे पूरी दुनिया जो है वो एकदम जो है वो शॉक में आ गई। दे स्टार्ट क्लोजिंग एवरीथिंग। एट दैट टाइम आई थिंक सो द ऑल हेड ऑफ द स्टेट स्टार्ट थिंकिंग, तमाम कंट्रीज ने ये सोचना शुरू कर दिया कि ओके वी कैन हैव सॉल्यूशंस टू स्टॉप समथिंग लाइक द एरोप्लेन ग्राउंडेड ओवर देयर। उसके बाद आपके शॉपिंग मॉल्स क्लोज करके टाइम गुजारा जा सकता है, लेकिन क्लोजर ऑफ द एजुकेशनल सिस्टम मीन ऑलमोस्ट 1.2 बिलियन स्टूडेंट्स स्टे आउट ऑफ द क्लासरूम। और ये इतना बड़ा लॉस था कि सडनली पहले तो बिल्कुल कुछ समझ ही नहीं आई कि इसका क्या अल्टरनेटिव हो सकता है और किस तरह इस चीज को ओवरकम किया जा सकता है। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता इसके अल्टरनेटिव्स के ऊपर जिस वक्त वर्किंग की, तो जो डेवलप कंट्रीज थे जिनके पास ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल था, उसमें मैं एक एग्जांपल सऊदी अरेबिया के दूंगा यहाँ पे कि 18th ऑफ मार्च को यहाँ पे लॉकडाउन स्टार्ट हुआ। लॉकडाउन मींस एवरीथिंग स्ट्रिक्टली क्लोज एंड नो वन कैन गो आउट एट दैट टाइम। तो वहां पे इन्होंने क्या किया कि इन्होंने इनके मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि वी आर गोइंग टू शिफ्ट आवर कंप्लीट एजुकेशन सिस्टम टू ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम।
यहाँ पे एक इनको बेनिफिट ये था कि इनके पास सिस्टम तो ऑलरेडी अवेलेबल था, लेकिन ये लोग उसको प्रॉपरली यूज नहीं कर रहे थे और उसको एज अ जैसे मैंने पहले कहा कि प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम के तौर पे नहीं देखा जा सकता था। लेकिन जिस वक्त ये पैंडेमिक के बाद इन्होंने डिसीजन लिया, तो जिस वक्त कंप्लीट ऑनलाइन सिस्टम को इंट्रोड्यूस कराया गया और ऑलमोस्ट आई थिंक फर्स्ट डे कंकरेंट कनेक्शंस वाज ऑलमोस्ट टू मोर देन 2 मिलियन, उसमें इनका सिस्टम भी 2 से 3 दिन के लिए इनको प्रॉब्लम आई, तो इन्होंने क्या किया, क्योंकि रिसोर्सेज अवेलेबल थे यहाँ पे, उस चीज का तो इशू था ही नहीं, तो इन्होंने आई रिमेम्बर कि 110 सर्वर्स इंक्लूड किए इन वन लोकेशन और नेक्स्ट डे से इनका जो ऑनलाइन सिस्टम है, जो आपके वर्चुअल क्लासरूम्स हैं, वो कंकरेंट वर्चुअल क्लासरूम्स मोर देन 2 मिलियन स्टार्ट द स्टूडेंट स्टार्ट टेकिंग द क्लासेस और बिल्कुल नॉर्मल तरीके से सिस्टम चलना शुरू हो गया। अब जिस वक्त तकरीबन अब 1 साल गुजर चुका है, यहाँ पे सऊदी अरेबिया में अभी तक इनका कंप्लीट ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम चल रहा है और फिलहाल उनका ये उन्होंने ऐलान किया कि जब तक ये कंप्लीट वैक्सीनेशन नहीं कर लेते तब तक स्टूडेंट्स कैन नॉट कम बैक टू द कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज। लेकिन पिछले दिनों जो यहाँ पे मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन थे सऊदी अरेबिया के, उनका एक ट्वीट वायरल हुआ कि हम आने वाले सेशन में अगर अपनी क्लासेस को ऑनलाइन लेके जाना चाहें भी, तो but we are not going to stop e-learning completely. We have to run our education system parallel with the regular face-to-face learning as well as the e-learning system. The reason is they realize there is a lot of benefits for e-learning. यहाँ पे क्योंकि कंप्लीट एलएमएस सिस्टम और लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम्स को फॉलो किया जा रहा है, तो उसमें ना सिर्फ टीचर्स के लिए इजी है, स्टूडेंट्स के लिए इजी है, बल्कि तमाम ट्रैक रिकॉर्ड और बहुत सारी ऐसी हर्डल्स जो फेस टू फेस एजुकेशन में फेस करनी पड़ती हैं, वो यहाँ पे इनके लिए वो ओवरकम हो गई। लेकिन अगर इसके पैरेलल हम लोग पाकिस्तान को देखें, तो पाकिस्तान के अंदर क्या हुआ कि जिस वक्त वहां पे लॉकडाउन स्टार्ट हुआ और स्टार्ट में तो ऐसी कोई पॉलिसी ही इंट्रोड्यूस नहीं हो सकी कि इसका ऑल्टरनेटिव क्या होगा। कुछ टाइम गुजरने के बाद इंस्टीट्यूशंस ने आई बिलीव कि कुछ इंस्टीट्यूशंस ने सेल्फ डिसीजन मेकिंग की और अपने स्टूडेंट्स के लिए जो उनके पास रिसोर्सेज अवेलेबल थे उसके साथ उन्होंने उसको अपने एजुकेशन सिस्टम को आगे कंटिन्यू करने की कोशिश की। लेकिन एक बहुत बड़ा जो चैलेंज या हर्डल आ रहा था, वो हम आगे जाके थोड़ा तफसील के साथ भी देखेंगे। वो हर्डल ये था कि एक्सेप्टेंस। आई बिलीव के प्रोडक्टिविटी या आप आउटकम्स उस वक्त तक नहीं ले सकते जब तक किसी चीज की एक्सेप्टेंस नहीं होती या उसको अडॉप्ट करना सेकंड नंबर के ऊपर आता है। तो हमारे जैसे सोसाइटी के अंदर एक बहुत ज्यादा मीन लाइक ये साइकोलॉजिकली ये है कि आपका कोई भी ह्यूमन बीइंग जैसे कोई चेंज आती है, मेजर चेंज आती है, तो वो रेजिस्ट करता है। पाकिस्तान के अंदर क्योंकि बचपन से हम लोगों ने सुनते हुए आ रहे हैं कि ये जो ऑनलाइन या ई लर्निंग या ऑनलाइन एजुकेशन होती है, ये कोई इतनी इम्पैक्टफुल नहीं होती, उसकी ना कोई ऐसी पॉलिसीज इंट्रोड्यूस हुई थी और ना ही इसको एज अ मेन प्लेटफॉर्म के तौर पे देखा गया, इसलिए उसका उतना इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप नहीं हो सका और ना ही हमारी जनरेशन को ये हम समझाने में कामयाब हुए कि ये आपका कंप्लीट अल्टरनेटिव है और इसके बगैर आप लोग नहीं चल सकते हो। लेकिन जैसे ये पेंडेमिक आया तो सडनली ये रियलाइजेशन हुई इवन इन पाकिस्तान के इस अल्टरनेटिव अगर फर्ज करें कि ये टेक्नोलॉजी अवेलेबल ना होती, वी मस्ट से अ बिग थैंक्स टू आईसीटी, टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कि उसकी वजह से हमारी कुछ ना कुछ बचत हो गई। अगर फर्ज करें कि आईसीटी ना होती तो आपके लिए एक बहुत बड़ा जो चैलेंज था वो ये था कि आप बिल्कुल स्टोन एज में वापस चले जाते, क्योंकि यहाँ पे लॉकडाउन, you cannot open your institutions, you cannot get together on one place and you have no other idea to go and continue with your education. ये आईसीटी ही थी कि जिसने लोगों को कनेक्ट किया, even you are not gathering on one place but you are gathered, like right now we are here 2 different countries और पाकिस्तान के अंदर भी आप डिफरेंट सिटीज से हैं, लेकिन आप एक जगह एक प्लेटफॉर्म के ऊपर कनेक्टेड हैं और आज हम इस चीज को डिस्कस कर रहे हैं कि इसको हम मजीद बेनिफिशियल कैसे बना सकते हैं। अब यहाँ पे हमने देखना है कि कितनी जो टाइप्स ऑफ ई लर्निंग कितनी है और आप किस किस तरह से आप लर्निंग कर सकते हैं। उसमें आपकी मल्टीपल टाइप्स हैं, उसमें लेसन बेस्ड लर्निंग है, 101 लर्निंग है, ग्रुप लर्निंग है, और ये मल्टीपल टाइप्स में मैं जो जाती तौर पे समझता हूँ
कि सेल्फ पेस्ड लर्निंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ई लर्निंग, कि इसको आप ई लर्निंग को अपनी मर्जी के मुताबिक ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। टीचर्स अपने टाइम के मुताबिक, स्टूडेंट अपने टाइम के मुताबिक, और इंस्टीट्यूशंस जो वो अपनी फिजिबल टाइमिंग है उसके मुताबिक तमाम की तमाम एक्टिविटीज को बगैर एक जगह पे गैदर हुए ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और इसके डिफरेंट वेज हैं। जैसे कुछ कॉलेजेस ने ऐसा किया कि उनके पास रिसोर्सेज, लिमिटेड रिसोर्सेज थे, तो उन्होंने जूम के साथ अपनी क्लासेस स्टार्ट की। और उसका, क्योंकि जो पेड वर्जन है उसमें अनलिमिटेड आपको टाइमिंग होती है, लेकिन जो आपका पेड वर्जन नहीं है उसमें, जो फ्री वर्जन है उसमें 40 मिनट का सेशन होता है। तो स्कूल्स ने स्पेशली और कुछ कॉलेजेस ने ये स्टार्ट किया कि उन्होंने 35 टू 40 मिनट के फ्री सेशंस क्रिएट किए अपने स्टूडेंट्स के लिए, और वो लेना शुरू कर दिए। एक और वहां पे अच्छा काम ये किया कुछ इंस्टीट्यूशंस ने, या हमारी सजेशन में भी यही चीज आती है कि उन्होंने वो रिकॉर्ड सेशन किए। सेशन के रिकॉर्ड करने के बाद, नॉट सेशन, यू कैन से द लेसन्स या लेक्चर्स जितने भी थे, लाइव लेक्चर्स को रिकॉर्ड किया और यूट्यूब चैनल क्रिएट करने के बाद उस पे अपलोड भी कर दिए। अब उसका फायदा ये क्या हुआ कि सेल्फ पेस्ड लर्निंग के लिए वो राह हमवार हो गई, कि कोई भी, आप देखें फेस टू फेस लर्निंग के अंदर जैसे आप आते हैं तो वहां पे जो आपका फेस टू फेस लर्निंग में लेक्चर डिलीवर हो गया वो आपका रिपीट नहीं हो सकता उस लेवल के ऊपर। लेकिन टेक्नोलॉजी ने आपको यहाँ पे ये बेनिफिट दिया कि आप अपने सेशंस को रिकॉर्ड करके आप उसको जो YouTube चैनल है या किसी भी ऐसे प्लेटफॉर्म पे, अपनी वेबसाइट पे या कहीं पे भी अपलोड कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स अपनी आसानी के लिए या किसी वक्त भी टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से वो उसको दोबारा वॉच कर सकता है, दोबारा जितनी दफा मर्जी है उसको, अगर कोई चीज समझ नहीं आ रही तो वो रिपीट उसको करके देख सकता है। तो आई बिलीव के आने वाली स्लाइड में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इसका, आई थिंक फेस टू फेस लर्निंग से जो ई लर्निंग को अगर आप पॉजिटिवली लें तो ज्यादा बेनिफिट्स सामने आए हैं, आप उसको ज्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सकती है। अगर आप टॉप ई लर्निंग रिसोर्सेज को देखें जो इफेक्टिव लर्निंग के लिए आजकल यूज हो रहे हैं, तो उसमें कुछ पेड आपके प्लेटफॉर्म है, कुछ आपके फ्री प्लेटफॉर्म भी यूज हो रहे हैं। उसमें कोर्सेरा है, ओपन ईडीएक्स है। ओपन ईडीएक्स यहाँ पे सऊदी अरेबिया में एक यूनिवर्सिटी यूज कर रही है, बाकी मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज क्या है कि सेंट्रलाइज्ड लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, वो गवर्नमेंट की तरफ से इंट्रोड्यूस कराया गया और वन लाइसेंसिंग के साथ है। तो उसके भी हम देखेंगे कि क्या बेनिफिट्स हमने यहाँ पे देखे। लेकिन ओपन ईडीएक्स का भी ये एक ओपन फ्री प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन करके एक यूनिवर्सिटी और एक या दो यूनिवर्सिटीज और कुछ कॉलेजेस इस प्लेटफॉर्म के ऊपर भी वर्किंग कर रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे और आपके प्लेटफॉर्म है, उसमें मेन कॉमन टाइप के हैं, वो खान एकेडमी है, MIT ओपन है, ओपन कोर्सवेयर के नाम से भी है। तो ये प्लेटफॉर्म भी यूज किए जा सकते हैं किसी इंस्टीट्यूशंस के लिए। और दूसरा एक जो सोल्यूशन हो सकता है वो ये सोल्यूशन है कि आप अपने जो यूनिवर्सिटी या कॉलेज लेवल के ऊपर अगर आपके रिसोर्सेज हैं तो यू हैव टू डेवलप योर ओन LMS सिस्टम एज पर योर रिक्वायरमेंट। मैं इवन के जो आई एम अ PhD स्कॉलर और उसमें मेरी जो रिसर्च चल रही है उसमें ये रिसर्च है हमारी कि हम एक मॉडल डिफाइन कर रहे हैं कि जो हायर एजुकेशन सिस्टम के लिए सोल्यूशन लेके आएगा। अब सोल्यूशन क्या है? मैंने यहाँ पे ये देखा कि जिस वक्त किसी भी यूनिवर्सिटी के पास रिसोर्सेज होते हैं तो वो LMS चूज करती है जो मार्केट में नंबर 1 होता है। लेकिन 2011 से लेकर 2020 तक आई हैव सीन लाइक जज़ान यूनिवर्सिटी हैव रिप्लेस्ड 3 LMS सिस्टम। The reason was might possible they were good, they have the rating, high rating in the market and they're number 1, but they does not meet the requirements of the local infrastructure. हमारा मॉडल उसके अंदर यही सोल्यूशन लेके आएगा कि जो भी यूनिवर्सिटी है या हायर एजुकेशन सिस्टम है वो अगर अपने इंस्टीट्यूशन के लिए LMS सिस्टम परचेज करना चाहता है या डेवलप करना चाहता है तो उसको ये हेल्प आउट करेगा कि you do not need to look into the number 1. You have to analyze your local resources and infrastructure, IT infrastructure and many other things, और जो आपके available resources हैं उसके साथ आपको कौन सा LMS system सूट करता है। तो ये इंशाल्लाह फ्यूचर में कुछ ऐसी डेवलपमेंट भी आएंगी। अभी हम ये देखते हैं कि सबसे जो मुझे पाकिस्तान के अंदर प्रॉब्लम देखने में आई है, और हमने एक छोटा सा सर्वे किया और उसके अंदर भी ये चीज़ है कि व्हाई स्टूडेंट्स नीड टू टेक ई लर्निंग सीरियसली। उसकी बहुत सारी रीजंस हैं।
कि क्यों स्टूडेंट्स को जो आपके ई लर्निंग है उसको सीरियस लेना चाहिए, क्योंकि इसके डिफरेंट एडवांटेजेस हैं। नंबर वन, उसमें अकोमोडेट्स एवरीवन नीड्स। फॉर एग्जांपल आप जॉबियन हैं, आप किसी और काम के अंदर मशगूल हैं और आप एक स्पेसिफिक टाइम के ऊपर कोई लेक्चर अटेंड नहीं कर सकते, आप हाउस वाइफ हैं, आपके पास मॉर्निंग में टाइम नहीं है, तो आप अपनी नीड्स के मुताबिक टाइम्स को एडजस्ट कर सकते हैं। और इसकी बहुत बड़ी एग्जांपल ये है कि हमारे डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस डिफरेंट जो सॉफ्ट स्किल्स को इनहेंस करने के लिए डिफरेंट सर्टिफिकेशंस इंट्रोड्यूस करवाते हैं, तो उसमें आपका जो पेस ऑफ लर्निंग है वो यूजर खुद से उसको अडॉप्ट कर सकता है, खुद से एक्सेप्ट कर सकता है। लेकिन इन सारी चीज़ों के साथ साथ हम एक चीज़ फिर अगेन उसमें रह जाती है कि इन जो बेनिफिट्स नजर आ रहे हैं कि लेक्चर कैन बी टेकन एनी नंबर ऑफ टाइम्स, जो हमने पहले भी डिस्कस किया कि एक रिकॉर्डेड लेक्चर आपके पास मौजूद है, आप बस जितना टाइम है उसको ब्रेकआउट करके देख सकते हैं, आप उसको मल्टीपल टाइम रिव्यू कर सकते हैं, रीवॉच कर सकते हैं, और उसमें आपकी अगर कोई कंफ्यूजन्स हैं तो वो भी आपकी क्लियर हो जाएंगी। एक और बहुत जबरदस्त बात जो ई लर्निंग में है, ऑनलाइन लर्निंग डिलीवरी में है, वो है क्विक डिलीवरी ऑफ लेसन्स। यहाँ पे कुछ प्रोटोकॉल्स को आपको फॉलो नहीं करना पड़ता। फेस टू फेस क्लासरूम्स के अंदर टीचर हैव टू कम इनसाइड क्लासरूम, उसने अटेंडेंस लेनी है, उसने स्टूडेंट्स को कहना है कि जी आप यू हैव टू सिट डाउन ऑन योर चेयर्स। उसके बाद इस सारे टाइम के अंदर 10 to 15 मिनट्स जो है वो गुजर जाते हैं और फिर एक लेक्चर स्टार्ट किया जा सकता है। जबकि ये जो आपका ऑनलाइन सिस्टम है इसमें ये सारे प्रोटोकॉल्स नहीं होते। अगर आप कोई प्रॉपरली लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, आपके वर्चुअल क्लासरूम्स एक अच्छी लेवल का एक सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, तो बहुत सारी आपकी जो ये लिमिटेशंस हैं वो खत्म हो जाती हैं। उसमें एक एग्जांपल ऐसी है कि आपको अटेंडेंस लेने की जरूरत नहीं पड़ती, वो सिस्टम ऑटोमेटिकली उसको लॉग इन और जो आपका लॉग आउट टाइमिंग है उसको कैलकुलेट करके उसको प्रेजेंट या एब्सेंट मार्क कर देता है स्टूडेंट को। उसके अलावा आपको जो एक स्पेसिफिक गिवन टाइम है, एग्जैक्टली उस टाइम के ऊपर आपका सेशन या आपका क्लास जो है वो स्टार्ट हो जाती है, आपको कुछ और प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं करना पड़ता। कंसिस्टेंसी इसमें बहुत ज्यादा है कि आपने ऑनलाइन जितने भी लेक्चर्स लिए तो उसमें आपने क्या करना है कि आपकी एक स्टेप बाय स्टेप आपका लेक्चर 1 2 3 उस कंसिस्टेंसी चल रही होती है और आपको किसी किस्म का वो रिपीट नहीं करना पड़ता नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जाके। एक और बहुत बड़ा फैक्टर है आपका रिड्यूस कॉस्ट। आपकी कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है। यू डू नॉट नीड इवन द स्टूडेंट, आइदर टीचर और स्टूडेंट और इंस्टीट्यूशंस के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको कहीं मूव नहीं करना पड़ता, किसी एक लोकेशन है उसमें जाके आपको गैदर नहीं होना पड़ता, तो इसलिए आपकी कास्ट भी रिड्यूस होती है। और एक और जबरदस्त बात इसमें यह है कि आप एक प्रोफेसर हैं जो इस्लामाबाद के अंदर हैं, वो ट्रैवल नहीं कर सकते मालाकांड में, लेकिन उनकी जो एक्सपर्टीज है उस एक्सपर्टी का बंदा मालाकांड में अवेलेबल नहीं है, तो वो ऑनलाइन क्लासेस इस्लामाबाद में बैठ के लेंगे और पूरे पाकिस्तान के जितने कैंपसेस हैं आप वहां पे ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं। तो वो जो ट्रैवलिंग की कॉस्ट है या मूवमेंट की कॉस्ट है वो सारी रिड्यूस हो जाती है। इफेक्टिवनेस इसकी बहुत ज्यादा है। इफेक्टिवनेस द रीजन बिहाइंड इज के मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। आपका ऑनलाइन तमाम जो आपके अपडेटेड वो कंटेंट्स हैं उसके अवेलेबल होते हैं और वो अपडेट होते रहते हैं। कोई भी प्रोफेसर या टीचर उनको अपडेट जैसे करता है तो वहाँ पे जो भी स्टूडेंट होंगे ऑनलाइन अवेलेबल होंगे वो सारे के सारे उस कंटेंट से फायदा उठा सकते हैं। अभी हम ये लोग ये देख लेते हैं कि जो इम्पोर्टेंट चीज इस सेशन की है कि हमें चैलेंजेस ऑफ ई लर्निंग ड्यूरिंग कोविड-19 क्या आए। सबसे मेन चैलेंज जो हमको देखना पड़ा वो था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क प्रोसेसेस एंड टाइम मैनेजमेंट। हम लोग टाइम मैनेज करने में इसमें प्रॉब्लम्स आ रही थी कि फॉर एग्जांपल एक घर के अंदर 3 या 4 स्टूडेंट्स हैं, तो वहां पे गैजेट्स शॉर्टेज हो गई, वो क्रैशिंग सिस्टम आ गया। अब फॉर एग्जांपल एक लैपटॉप है, 2 स्टूडेंट्स ने क्लास लेनी है, वहां पे फॉर एग्जांपल उनके घर में एक टीचर भी मौजूद है, उन्होंने अपनी क्लास लेनी है, तो ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स यहाँ पे फेस करना पड़े, क्योंकि एज वी अर्लियर सेड कि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर रिसोर्सेज का एक बहुत बड़ा बहरान होता है, तो उस चीज को ओवरकम करने के लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स देखनी पड़ी। उसके अलावा कनेक्टिविटी, क्योंकि हमारे यहाँ इंटरनेट कनेक्टिविटी का भी एक इशू रहता है और स्पेशली रिमोट एरियाज के अंदर ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि वहां पे इंटरनेट की फैसिलिटी इतनी ज्यादा नहीं होती। एक और इम्पोर्टेंट इसमें फैक्ट जो है कंप्यूटर लिटरेसी। स्टूडेंट की हद तक तो हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर लिटरेट होंगे, क्योंकि
बचपन से कंप्यूटर या मोबाइल यूज़ कर रहे होते हैं तो उनको इतना ज़्यादा मसला नहीं आता, लेकिन बहुत सारा ऐसा स्टाफ था जिनकी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं हो सकी, या वो फॉर एग्जांपल मेडिकल रिलेटेड या इंजीनियरिंग रिलेटेड जिनकी डायरेक्ट फील्ड कंप्यूटर साइंसेज नहीं रही और वो उनकी उतनी स्किल्स नहीं रही, तो उनको भी डिफरेंट सिस्टम्स को यूज़ करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती गई। इसके अलावा एक और जो चीज़ सिक्योरिटी इसमें इशू रहा, साइबर क्राइम्स, और स्पेशली यहाँ सऊदी अरेबिया में मैंने देखा बहुत ज़्यादा साइबर क्राइम्स देखने में आए। उसकी रीज़न ये थी कि जो स्टाफ है वो इतना कंप्यूटर लिटरेट ना होने की वजह से उनको ये नहीं आइडिया हो पाता कि हमने इस सिस्टम के अंदर रहते हुए अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करना है। तो वो किसी किस्म की ईमेल आई, उन्होंने क्लिक कर दिया, सिस्टम हैक हो गया, इवन कि यहाँ पे लोगों के बैंक अकाउंट्स हैक हुए और बहुत ज़्यादा लॉस हुआ। तो ये एक चैलेंज रहा हमें, और एट द एंड आई थिंक सो जो सबसे इम्पोर्टेंट चैलेंज है अभी भी पाकिस्तान के अंदर वो है एलएमएस इम्परफेक्शंस, कि एलएमएस उस लेवल का या उतने अच्छे एलएमएस सिस्टम नहीं है, या सारे इंस्टीट्यूशंस के पास नहीं है, और वो अपने स्टूडेंट्स का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, जो उनका स्टडी रिकॉर्ड है, उसको नहीं रख पाते, या एलएमएस सिस्टम जो यूज कर रहे हैं उसका जो इंटरफेस है वो इतना फेमिलियर नहीं है कि जिस चीज को कवर अप किया जा सके, और उस वजह से भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिले। और एट द एंड हम लोग ये देखते हैं कि हम लोग अभी तक सब कुछ अच्छा अच्छा देख रहे हैं कि हाँ जी, ई लर्निंग के अंदर तो सब कुछ अच्छा होता है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स भी हैं, हम लोग इससे फ़ायदा भी उठा सकते हैं और बेहतर अंदाज में हम स्टडी भी कर सकते हैं, बट स्टिल देयर आर लिमिटेशंस। किसी भी सिस्टम के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, और उसको भी हमेशा सक्सेसफुल, आई बिलीव कि सक्सेसफुल अगर आप कोई भी सिस्टम को लेके चलते हैं तो उसके दोनों एंड को आपको अपने सामने रखना चाहिए। नंबर वन कि उसके बेनिफिट्स क्या हैं और उसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, ताकि उनको ओवरकम किया जा सके। सबसे पहला जो प्रॉब्लम है वो है कि इट मे बी अ सोलो एक्ट, और ये आएगा आपका स्टूडेंट्स एंड के ऊपर, और इसमें पेरेंट्स और स्टूडेंट्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है कि फॉर एग्जांपल मॉर्निंग 8 o'clock यू हैव द क्लास, और वहां पे आप क्लास में पहुंचना है, ये आपकी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है या आपके पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब यहाँ पे अगर इस सोलो एक्ट को आप पॉजिटिव वे में यूज नहीं करते तो क्या होगा कि सेशन मूव ऑन हो जाएगा, और पेरेंट्स को अगर अवेयरनेस नहीं है, क्योंकि अभी तक पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आ रहा है कि पेरेंट्स भी ये समझते हैं और स्टूडेंट्स भी ये समझते हैं कि जो ऑनलाइन एजुकेशन होती है इसका कोई बेनिफिट नहीं होता, और इसको इसलिए आई बिलीव कि टिल नाउ हम ऑलरेडी इतने पीछे हैं कि हार्डली आई थिंक एक लास्ट सर्वे के मुताबिक 14% ऑफ द पॉपुलेशन इन पाकिस्तान हैव द एक्सेस टू द इंटरनेट। अब हम थोड़ी देर के लिए उस बाकी परसेंटेज को अगर भूल भी जाएं तो जो ये 14% जिनके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उसमें भी 60 to 70% ऐसे लोग हैं जो इसको पॉजिटिव नहीं लेते, इसको सीरियस नहीं लेते, और उस वजह से वो उनके जो बेनिफिट्स हैं वो उसको अचीव नहीं कर पा रहे। तो आई बिलीव कि इंस्टीट्यूशन को भी यहाँ पे एक पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट कोई पॉलिसी ऐसी लेके आए, क्योंकि 2 या 3 स्टेप्स होते हैं किसी भी नए सिस्टम को डिप्लॉय करने के लिए या उसको या उसकी एक्सेप्टेंस क्रिएट करने के लिए। नंबर एक तो ये है कि आप अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। नंबर दो, आप सेल्फ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको लेके चलें। और नंबर तीन जो इम्पोर्टेंटली है कि अगर ये दोनों फैक्टर के साथ साथ आप फोर्सफुली कोई चीज इंप्लीमेंट नहीं करवाएंगे तो वो आप उसके 100% बेनिफिट्स नहीं ले सकते। अब कैसे है कि आपने उसके अंदर कुछ ऐसी पॉलिसीज लेके आ सकते हैं कि जिस तरह इंस्टीट्यूशंस कुछ ऐसे पॉलिसी लेके आए कि अटेंडेंस अगर इतनी परसेंटेज का इंप्लीमेंट किया जा सकता है, गवर्नमेंट की तरफ से इसको देखा जा सकता है। इसमें एक और बहुत बड़ा फैक्टर जो लिमिटेशन में आता है वो है कि रिक्वायर्स सेल्फ डिसिप्लिन। जैसे अभी मैंने कहा कि आपको सेल्फ डिसिप्लिन खुद होना पड़ेगा, क्योंकि ये एक सोलो एक्ट है। अगर आपके पास अवेयरनेस नहीं है तो आप इस चीज को सोलो एक्ट को अडॉप्ट नहीं कर सकते। और इसमें आप देख सकते हैं कि एक्सेप्टेंस एंड अडॉप्शन ऑफ ई लर्निंग इन पाकिस्तान, बहुत सारी चीजें ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर ली कि एक्सेप्ट कैसे किया जा सकता है और इसको अडॉप्ट कैसे किया जा सकता है, लेकिन एक्सेप्टेंस नंबर वन पे आती है, तब उसकी आप प्रोडक्टिविटी ले सकते हैं। और इसके हमने जो अपने मुताबिक इसको कैटेगराइज किया है तो इसमें 4 डिफरेंट सेगमेंट्स हैं जो इसको मिल के आप इसकी एक्सेप्टेंस क्रिएट कर सकते हैं और
बेटर जो आप रिजल्ट्स हैं उनको फाइंड आउट कर सकते हैं। नंबर 1 गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट क्योंकि ये एक टॉप टू बॉटम अप्रोच है, इसको जब तक आप पॉलिसी के ज़रिए इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो हर्डल्स वो सिर्फ गवर्नमेंट ही बियर कर सकती है, जबकि जिस वक्त ऊपर से टॉप डाउन अप्रोच आएगी तो पहले आपकी गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी इंट्रोड्यूस होगी, उसके बाद इंस्टीट्यूट उसको फॉलो करेगा और इंस्टीट्यूट की अपनी पॉलिसी होगी। फिर फैकल्टी का आ जाता है कि उन्होंने इस चीज़ को सीरियसली लेना है कि इंस्टीट्यूट उनकी कुछ ऐसी ट्रेनिंग्स कराएं। नॉट ऑल बट बहुत सारे ऐसे हमारा फैकल्टी मेंबर्स हैं जो इन ऑनलाइन सिस्टम्स को एक्सेप्ट करने में रेजिस्टेंस फील करते हैं क्योंकि उनकी उसमें एक्सपर्टीज नहीं होती। तो इंस्टीट्यूट उनकी ट्रेनिंग्स करवा सकता है, सॉफ्ट स्किल्स को इम्प्रूव कर सकता है और एट द एंड स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स इनका किरदार सबसे अहम हो जाता है यहाँ पे कि जब तक स्टूडेंट खुद इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा वो इसका बेनिफिट भी नहीं ले सकता। तो इसके लिए स्टूडेंट्स को और उनके पेरेंट्स को दोनों को अवेयरनेस डेवलप करने की ज़रूरत है। एट द एंड हम लोग डिस्कस करते हैं कि कुछ सजेशंस जो हमने सॉर्ट आउट किए हैं और उसके क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं। गवर्नमेंट लेवल के ऊपर क्या सॉल्यूशंस आ सकते हैं, ये एक सॉल्यूशन हो सकता है जो आइडिया है मेरा। लेकिन ये है कि इसके साथ साथ और बहुत सारी चीज़ें भी इंट्रोड्यूस की जा सकती हैं। आई विश कि हमारी आवाज़ आपके थ्रू डिसीजन मेकर्स तक पहुंच सके कि जो मैंने सबसे ज्यादा बेनिफिशियल चीज देखी है यहाँ मिडिल ईस्ट के अंदर वो है सेंट्रलाइज्ड लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। सेंट्रलाइज्ड लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का मतलब क्या है कि यहाँ पे हम लोग ब्लैक बोर्ड यूज कर रहे हैं एज एन एलएमएस सिस्टम। तो ये पूरी मिडिल ईस्ट में एक ही एलएमएस सिस्टम यूज हो रहा है क्योंकि ये गवर्नमेंट बेस्ड परचेज है, सिंगल लाइसेंस है और उन्होंने आपने तमाम जो हायर एजुकेशन है उसको ये डायरेक्टिव्स दी हैं कि आपने ये ही सिस्टम यूज करना है। अब उसका बेनिफिट क्या होता है? बेनिफिट यहाँ पे ये हुआ कि एक ही एडमिनिस्ट्रेटिव टीम रियाद के अंदर बैठी हुई है और जिस वक्त किसी एक इंस्टीट्यूट के अंदर कोई भी लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का इशू आता है, जैसे वर्चुअल क्लासरूम्स नहीं वर्किंग कर रहे, कंटेंट अपलोड नहीं हो रहे या कोई और इस टाइप का आपका इशू है, क्विज़ेस का मसला आ गया, आपका असाइनमेंट्स अपलोड नहीं हो रही या उसका जो ग्रेड सेंटर्स है वो प्रॉपर्ली वर्किंग नहीं कर रहा, तो वो एक क्यूरी जिस वक्त उस टीम के पास जाती है तो उसका सलूशन वो पूरी किंगडम के लिए सलूशन होता है। मतलब एक प्रॉब्लम्स का सलूशन फाइंड आउट करने का मतलब ये है कि पूरी कंट्री के लिए एक सलूशन मिल गया कि वो किसी और को भी अगर उस टाइप का इशू आ रहा है तो वो वहां पे दोबारा नहीं आएगा और वो सारे सॉल्यूशंस वहां पे होते जाएंगे। फिर एक और बहुत बड़ा बेनिफिट ये हो सकता है सेंट्रलाइज्ड लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का कि फॉर एग्जांपल एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर ट्रेनिंग्स हुई हैं पूरे पूरे कंट्री में, पूरे हायर एजुकेशन सिस्टम के अंदर। तो स्टूडेंट अगर रीलोकेट करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस और अगर फैकल्टी मेंबर रीलोकेट कर रहा है फ्रॉम वन इंस्टीट्यूशन टू अनदर इंस्टीट्यूशन तो उसके लिए वहां पे भी वही सिमिलर एनवायरनमेंट होगा और उसको नए सिरे से नए सिस्टम को सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आई बिलीव ये बहुत बड़ा बेनिफिट है, स्पेशली पाकिस्तान के हवाले से तो ये बहुत ज्यादा बेनिफिट है जहाँ पे रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, जहाँ पे हमारा ट्रेनिंग का इतना ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, फिर टेक्नोलॉजी की एक्सेप्टेंस उतनी ज्यादा नहीं है। तो वहां पे अगर इस तरह का सेंट्रलाइज सिस्टम लेके आया जाए तो वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। उसके बाद इंस्टीट्यूशन लेवल के ऊपर क्या हो सकता है कि वो टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग्स करवा सकते हैं अपने स्टाफ को, अपने स्टूडेंट्स को, अवेयरनेस कैंपेन लॉन्च कर सकते हैं, कुछ ऐसे सर्टिफिकेशन बेस्ड आपकी कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं, ऐसे प्रोग्राम्स लेके आ सकते हैं। क्योंकि ये भी ह्यूमन साइकी है कि अगर कोई इंसेंटिव की बात हो तो हम उसकी तरफ मूव करते हैं, उसको एक्सेप्ट करना हमारे लिए आसान हो जाता है। तो आई बिलीव कि इंस्टीट्यूशंस की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि दे हैव टू टेक दिस एनवायरनमेंट और ई लर्निंग एनवायरनमेंट एज द प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम और उस पर फोकस करें और आने वाले दिनों के अंदर इस चीज को ज्यादा बेहतर तरीके से मैनेज किया जा सकता है। फैकल्टी एंड के ऊपर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे भी फैकल्टी मेंबर्स को थोड़ा सा जो फेस टू फेस लर्निंग है उससे हट के थोड़ा सा एडवांस लेवल की थिंकिंग क्रिएट करनी पड़ेगी कि आपने स्टूडेंट्स को एंगेज कैसे रखना है।
आप उसके लिए डिफरेंट मेथड यूज कर सकते हैं। आप डिस्कशन फोरम क्रिएट कर सकते हैं जहां पे कोई एक ऐसा थ्रेड क्रिएट करें हर एक ग्रुप के लिए कि वो उसमें एंगेज हों। उसके अलावा लॉजिकल असेसमेंट्स दे सकते हैं कि कोई ऐसी असाइनमेंट हो जिसमें हर स्टूडेंट इंडिविजुअली आपका इन्वॉल्व हो। जैसा मैं एक इंजीनियरिंग के स्टूडेंट से बात कर रहे थे पाकिस्तान के अंदर, तो उन्होंने मुझे बड़ी जबरदस्त एक बात बताई कि हमारे टीचर ने, मैथमेटिक्स के टीचर ने हमें एक असाइनमेंट दी जिसमें हमारा रोल नंबर आईडी ऐड होता था और उसके अकॉर्डिंगली आंसर हमें निकालना था। तो उसमें क्या हो गया कि वो कॉपी पेस्ट या जो हमारे यहाँ वो चीटिंग का कॉन्सेप्ट हो जाता है समटाइम्स के आप एक ही असाइनमेंट सारों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए या उसी को हल्का फुल्का चेंज करके अपलोड कर देते हैं। तो इस तरह की लॉजिकल असेसमेंट्स अगर आएंगी तो वो हर स्टूडेंट इंडिविजुअली उसमें एंगेज होगा और वो बेहतर जो परफॉर्मेंस उसमें इंपॉर्टेंस है उसकी और जो परफॉर्मेंस है उसमें बेहतरी आएगी। उसके अलावा इंडिविजुअल वन वन कंसंट्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता होना चाहिए कि आपके स्टूडेंट्स आपके साथ एंगेज हैं कि नहीं है, और अगर किसी एक स्टूडेंट को प्रॉब्लम आ रही है तो उसको किसी भी टाइप की, चाहे टेक्निकल इशू है या उसको टेक्नोलॉजी का इशू है, तो वो ओवरकम करने के लिए फैकल्टी जो है वो अपना किरदार अदा कर सकती है। एट द एंड अगेन स्टूडेंट लेवल और पेरेंट्स लेवल, वी ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट दिस वन, कि एक सेल्फ जो मोटिवेशन है वो स्टूडेंट को क्रिएट करनी पड़ेगी। अभी मुझे जितने लोग सुन रहे हैं आई थिंक हायर एजुकेशन से रिलेटेड बिलोंग करते होंगे मैक्सिमम, और इसमें ग्रेजुएट अंडर ग्रेड्स जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आई थिंक ये वो लेवल होता है जिसको वो चीज बताना नहीं पड़ती कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। ये मैच्योरिटी लेवल इतना होता है कि आप खुद से डिसाइड कर सकते हैं कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। देखें, आज से एक साल पहले तक हम ये कह सकते थे कि ई लर्निंग इज अ पार्ट टाइम गेम और इसको कहीं कहीं यूज किया जा सकता है या एज अ प्राइमरी सेटअप के तौर पे हम इसको नहीं लेंगे। लेकिन जैसे पैंडेमिक के दौरान हमने देखा कि आपकी गैदरिंग मिनिमाइज हो गई, क्लोजर ऑफ इंस्टीट्यूशंस हो गया, तो हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं रहा। इस वजह से यहाँ पर हमें जो स्टूडेंट्स हैं इनको मैच्योरिटी का सबूत देना होगा और अवेयरनेस, सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ डिसिप्लिन इसको मैनेज करना होगा। सोलो एक्ट को पॉजिटिव एक्ट के तौर पे लेना होगा। अदरवाइज क्या होगा कि अगर आप खुद अपने आप को पॉजिटिव नहीं करेंगे तो सबसे ज्यादा नुकसान भी आपका होगा। इंस्टीट्यूशंस भी चलेंगे, फैकल्टी भी रन करेगी, लेकिन अगर कोई पीछे रह जाएगा तो वो डेफिनेटली स्टूडेंट रहेगा। तो इस चीज की जो इम्पोर्टेंस है, ये इस अवेयरनेस को अपने अंदर लेके आए, अपने इर्द गिर्द जितने आपके स्टूडेंट्स हैं उनको अवेयर कर रहे हैं, जो आपके पेरेंट्स हैं। ये इंस्टीट्यूशंस इसमें कोई कैंपेन लॉन्च कर सकता है या गवर्नमेंट लेवल के ऊपर ये कैंपेन लॉन्च हो सकती है कि पेरेंट्स को अवेयर किया जाए कि दिस इज नॉट आई मीन लाइक ऑप्शनल थिंग, now this is compulsory and you have to follow your kid either he is coming to take the class or not। जिस तरह हम लोग बड़े ऑनर के साथ एक बात करते हैं कि I have a kid 1.5 year old and he can use all the gadgets like मोबाइल, और वो कंप्लीट उसको अवेयरनेस है, वो गेम ओपन कर लेता है और यहाँ पे गैलरी में पिक्चर्स ओपन कर सकता है, सारी चीजें यहाँ पे बड़ी आसानी के साथ यूज कर सकता है। तो ये ही अवेयरनेस हमें प्राउडली अपने आप को भी कहना होगा कि आई कैन यूटिलाइज ऑल दीज रिसोर्सेज, ऑल दिस टेक्नोलॉजी, और ये जो बेनिफिट्स हैं इसके, इसको मैंने लेना है, पॉजिटिवली लेना है, ना कि इसको ड्रेन आउट कर देना है सारी एनर्जी को सिर्फ ये सोचते हुए कि ये एक नेगेटिव थिंकिंग क्रिएट करके कि ये हमारे लिए इतना ज्यादा बेनिफिशियल नहीं है। और इस वजह से हम लोग ना तो ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करेंगे और जिस वक्त एग्जाम का टाइम आएगा तो फिर हम बिल्कुल एक खाली माइंड के साथ बैठे हुए होंगे। तो अगेन मैं एट द एंड इसी चीज के ऊपर फोकस करूंगा कि ये टॉप टू बॉटम अप्रोच है, लेकिन एट द एंड जो सबसे बेटर डिसीजन मेकिंग करनी है वो स्टूडेंट ने खुद करनी है, वो उसके पेरेंट की अवेयरनेस के साथ करनी है। जिस तरह हम प्राउडली अपने कहते हैं कि हम मोबाइल बहुत अच्छी तरह यूज कर सकते हैं, तो हमें प्राउडली ये भी कहना चाहिए, ये भी सोच डेवलप करनी चाहिए कि हम जो टेक्नोलॉजिकल इन्हांसमेंट है, जो हमारी एजुकेशन के अंदर इन्हांसमेंट आ रही है, जो उसके अंदर चेंजेस आ रही हैं, हमने उसको भी पॉजिटिवली एक्सेप्ट करना है और अपने साथ जो उनके बेनिफिट्स हैं उनको लेके चलना है, ना कि हमने अपने आप को एक अलग थलग साइड पे कर लेना है। टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट नहीं करना, और एक्सेप्ट नहीं करना तो अडॉप्ट नहीं करेंगे, अडॉप्ट नहीं करेंगे तो आप सबसे पीछे रह जाएंगे, आप दुनिया से भी पीछे रह जाएंगे। आईबीएम की रिसर्च ये कहती है कि
5 times faster student can learn by using e-learning resources. आपकी इंग्लैंड की ओपन यूनिवर्सिटी ये कहती है कि आपका 90% less energy consumed using the online education by e-learning instead the face-to-face learning. आप ये देखें कि फेस टू फेस लर्निंग के अंदर आपको ट्रैवल कितना करना पड़ता है, आपको एक क्लास में पहुंचने के लिए कितनी स्टेप्स को फॉलो करके, प्रोटोकॉल्स को फॉलो करके वहां पे पहुंचना पड़ता है। इन सारी चीजों को ओवरकम करके जिस वक्त आपके पास ये रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, जिन स्टूडेंट्स के पास ये रिसोर्सेज हैं वो इनको यूटिलाइज करें, और जिनके पास नहीं है उनका एक लास्ट सजेशन के गवर्नमेंट लेवल के ऊपर यहाँ पे क्या हुआ कि हर जो रिमोट एरियाज हैं वहां पर आपके डेफिनेटली यहाँ पे भी कनेक्टिविटी इश्यूज थे, और इंटरनेट का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हर जगह दुनिया में रहता है, चाहे वो जितना भी डेवलप कंट्री हो, उसके रिमोट एरियाज में वहां पे इंटरनेट अवेलेबल नहीं होता। तो वहाँ रिमोट एरिया के जो कैंपसेस हैं वहां पे यूनिवर्सिटी ने क्या किया कि लैब्स डेवलप की, वो अप टू डेट लैब्स थी, थिन क्लाइंट टेक्नोलॉजी यहाँ पे डिप्लॉय की गई। उसमें एक रिसर्च पेपर भी है, अगर उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना चाहें तो मेरा एन एफिशिएंट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ थिन क्लाइंट टेक्नोलॉजी इन जैसान यूनिवर्सिटी, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि वो क्या टेक्नोलॉजी है और कितना उसका बेनिफिट है। तो उन्होंने क्या किया कि ये ट्रेडिशनल कंप्यूटर लैब्स की बजाय स्मार्ट कंप्यूटर लैब्स वहां पे इंट्रोड्यूस कराएं। तो जो स्टूडेंट्स रिमोट एरिया में अपने यहाँ वो उनके कनेक्टिविटी इश्यूज थे वो सारे दे कैन मूव ओवर देयर एंड अकॉर्डिंग टू देयर टाइमिंग्स दे कैन एक्सेस ऑल देयर ऑनलाइन कंटेंट्स, और वहां पे बैठ के वो स्टडी करके अपनी असाइनमेंट को अपलोड करके जो कुछ भी उन्होंने घर में बनाया लैपटॉप के ऊपर कुछ भी है उसको यूएसबी में लेके आए, यहाँ पे अपने लॉगिन से एलएमएस में लॉगिन हुए और अपलोड करके, और वहां से नई असाइनमेंट्स और जो आपके क्विज़ेस जो कुछ भी था वो अटेम्प्ट करके वो वापस चले जाते थे। तो ये भी एक तरीका है जहाँ पे रिमोट एरियाज में आपकी एक्सेस नहीं है। और मैंने बहुत शार्पली इस चीज को लेके चला हूँ सेशन को। आई थिंक ये एक ऐसा टॉपिक है कि इसमें घंटों बात की जा सकती है, और हमने कोशिश की कि कुछ अंडरस्टैंडिंग डेवलप की जा सके, और लेकिन क्योंकि टॉपिक बड़ा है इसलिए इसको इतना कम टाइम के अंदर रैप अप करना मुश्किल होता है। नाउ आई हैंड ओवर टू एडमिनिस्ट्रेशन साइड, अगर कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी प्लीज। Thank you, sir. I'm very thankful to you and your team for this very informative session, and hopefully it will help us all in improving the e-learning in our country. Now we will have a short session for question answers. If anyone want to ask the question, house is open. Assalamu alaikum, Shakil साहब, डॉक्टर मुश्ताक here. सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका, बड़ा मज़ा आया सेशन का, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। एक जुज़वी सा क्वेश्चन है कि जो अभी आप बता रहे थे कि ई लर्निंग सिस्टम जो है हमारे पास एलएमएस सिस्टम, ये आइडियल तो नहीं हो सकता, क्योंकि अभी आप कह रहे थे कि उधर सऊदी अरबिया में एक ही एलएमएस सिस्टम उन्होंने अडॉप्ट किया हुआ है सारी यूनिवर्सिटीज़ में, पूरे एजुकेशन सेक्टर्स में। ये जो अवेलेबल हमारे पास लाट है ऑफ एलएमएस सिस्टम्स के, इसमें से बेहतर सिस्टम कौन सा हो सकता है? यानी कि इसमें कमजोरी या वीकनेसेस तो फिर भी रहेगी, लेकिन जो अवेलेबल हमारे पास अभी रिसोर्सेज है उसमें से कौन सा सिस्टम आप समझते हैं कि बेहतर है? सबसे बेटर सिस्टम उसको कहता हूँ कि जो जिसका वर्चुअल क्लासरूम्स बिल्ट इन अपना डेवलप किया हुआ हो, क्योंकि एज आई सेड कि मोर देन 800 वेंडर्स आर वर्किंग इन द मार्केट फॉर एलएमएस सिस्टम, लेकिन मैक्सिमम का ये होता है कि जो वर्चुअल क्लासरूम है वो थर्ड पार्टी होता है। अब उसमें क्या, आपको एक एग्जांपल मैं देता हूँ, जैसे यहाँ पे जज़ान यूनिवर्सिटी ने जंप के नाम से, जज़ान यूनिवर्सिटी मल्टी प्लेटफॉर्म के नाम से एक कोरियन कंपनी से खुद डेवलप करवाया। इट वाज ह्यूज कॉस्ट इन्वॉल्व एट दैट वन, लेकिन वर्चुअल क्लासरूम्स उनका भी अपना डेवलप नहीं था और वो थर्ड पार्टी टूल इन्वॉल्व किया उन्होंने, जिसकी वजह से आप बिलीव करें कि वो डेली के प्रॉब्लम्स, मतलब लाइक थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स आर आस्किंग लाइक कि दे आर अनएबल टू लॉग इन, दे आर अनएबल टू लिसन प्रॉपर्ली। तो ये जो थर्ड पार्टी जो भी इन्वॉल्वमेंट होगी उसके साथ आप वर्चुअल क्लासरूम के जो बेनिफिट्स हैं उसको नहीं ले सकते। और दूसरी ये चीज़ है, जैसे जैसे मैं ब्लैक बोर्ड का जिक्र करूं, जो कोई भी सिस्टम है, जो एलएमएस सिस्टम है, नया डेवलप अगर हुआ होगा तो उसको स्टैब्लिश होने में बहुत टाइम चाहिए। जैसे ब्लैक बोर्ड की अगर एग्जांपल दें तो 98 में डेवलप हुआ, तो इट्स मोर देन 20 इयर्स, तो वो एक स्टैब्लिश सिस्टम बन चुका है। यहाँ पे उसका यूजर
इंटरफेस के ऊपर काम ऐसा किया गया कि एक बिल्कुल लिमिटेड जो नॉलेज रखने वाला कंप्यूटर का है वो भी उसको ऑपरेट कर लेता है। और दूसरा ये है कि इनका बिल्ट इन वर्चुअल क्लासरूम है, इस वजह से बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। कभी ये इशू नहीं आया कि उनकी कनेक्टिविटी का इशू हो या लाइव लेक्चर्स का। आप बिलीव करें कि 1.2 मिलियन virtual lectures being held till now in Saudi Arabia, and 5.4 million students are concurrent, have the concurrent connection with this system, और कभी कोई इशू नहीं आ रहा। मैं यही कहूँगा कि सिस्टम कोई भी एलिमेंट्स आप उठा लें, उसमें दो चीज़ें होनी चाहिए। वर्चुअल जो क्लासरूम में बिल्ट इन हो और दूसरा यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। डॉक्टर मुश्ताक साहब, मैं एक एट द एंड एक जस्ट एक सेंटेंस और एक रिक्वेस्ट आपसे करना चाहता हूँ, अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो। Sure, sir. Please. सर, मेरी रिक्वेस्ट ये है कि जैसे हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और हम इस दुनिया को भी देख रहे हैं और पाकिस्तान को भी देख रहे हैं, तो आप लोग जैसे डिसीजन मेकर्स हैं, पाकिस्तान में एक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के साथ एफिलिएट हैं, आपकी आवाज़ बेहतर अंदाज में डिसीजन मेकर्स तक पहुंच सकती है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करूंगा कि प्लीज़ ये मतलब लाइक हमारी रिक्वेस्ट या सजेशन जो डिसीजन मेकर्स हैं उन तक ये लाजमी पहुंचनी चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर हम बहुत मतलब लाइक रिसोर्सेज लिमिटेड होना इज़ अ डिफरेंट थिंग, लेकिन जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं वो कुछ ऐसी इंट्रोड्यूस होनी चाहिए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की पॉलिसीज कुछ ऐसी आनी चाहिए कि ई लर्निंग की जो क्रेडिबिलिटी है उसको बेहतर किया जा सके। हम अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी को देखते हैं, बचपन से हम ये देखते आए हैं कि कोई अगर किसी यूनिवर्सिटी से पास नहीं हो सकता तो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले ले। हमने उसकी क्रेडिबिलिटी बनाई नहीं ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम की कि जो कि हमें बेनिफिट दे सके। तो अब ऐसा टाइम है कोविड के बाद कि ये अल्टरनेटिव के तौर पे सिस्टम हमारे सामने आया है, तो कुछ ऐसी पॉलिसीज गवर्नमेंट की तरफ से, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की तरफ से आनी चाहिए कि जो स्टूडेंट्स और पेरेंट्स की ये थिंकिंग चेंज कर सकें कि ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम बोगस सिस्टम नहीं होता, बल्कि ये नालायक स्टूडेंट्स के लिए नहीं होता, बल्कि ये एक कंप्लीट अल्टरनेटिव है। इसको हमने अब आगे एज अ प्राइमरी सिस्टम के तौर पे लेके चलना है। इवन के रेगुलर, इवन के ये पेंडेमिक खत्म हो जाए, रेगुलर फेस टू फेस क्लासेस हो जाएं, तो उसमें भी आपके कुछ आसान सब्जेक्ट ऐसे होने चाहिए जिसको ई लर्निंग के तौर पे लिया जाए। उसके क्विजेस आपके ई लर्निंग के थ्रू आने चाहिए, जैसा कि यहाँ पे इन्होंने ये किया है कि इवन फेस टू फेस क्लासेस के अंदर असाइनमेंट्स ऑनलाइन दी जाती हैं। पार्शियली ब्लेंडेड लर्निंग की तरफ ये लोग जा रहे हैं ताकि दोनों चीजों को पैरेलल लेके जाया जा सके। जज़ाकल्लाह शकील साहब, बहुत शुक्रिया। हम अपने एंड पे तो सर ज़रूर कोशिश करेंगे, जहाँ तक हमारी अप्रोच है इंशाल्लाह हम ये ज़रूर उनके सामने रखेंगे। लेकिन ये है कि अगर स्टैंडर्ड वाइज कंपैरिजन किया जाए तो यह हम सबको पता है कि हम काफ़ी पीछे हैं, या तो टेक्नोलॉजी साइड पे देखा जाए तो भी नहीं है, हम कम्पीट नहीं कर सकते उन कंट्रीज़ को जो कि डेवलप कंट्रीज़ है या जहाँ पे ये सारी फैसिलिटीज़ उन्होंने पहले से यूज़ की है या अवेलेबल है उनकी इंस्टीट्यूशन में। उस साइड पे भी थोड़ी सी कमज़ोरी है। दूसरा ये कि हमारी जो स्टूडेंट्स है और फैकल्टी होती है उनकी भी ट्रेनिंग्स वगैरह की जो डिफिशेंसीज रहती है हमेशा इसी चीज़ में। तो जहाँ तक हो सकता है, अभी तो सिचुएशन ऐसे बन गई है कि ये बादिल नाखास्ता हम इसको अडॉप्ट कर रहे हैं। अभी ऑनलाइन सिस्टम जो है एजुकेशन का, हमारे पास ऑप्शन ही कोई और नहीं रहा है, तो हम इसी सिस्टम के तरफ चले गए हैं। तो इंशाल्लाह अब इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है भी, और मेरे ख्याल से गवर्नमेंट भी इस चीज़ को सीरियस लेगी, जहाँ तक वो कर सके इंशाल्लाह वो सपोर्ट करेगी। तो हमसे हो सके सर इंशाल्लाह हम ज़रूर इसको आगे लेके जाएंगे। और पार्टिसिपेंट जितने सारे बैठे हुए हैं उन सबका बहुत शुक्रिया, उनके टाइम का भी। अगर स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, Sir, I have a question. श्योर श्योर। सर, क्वेश्चन मेरा ये है, जिस तरह आपने बता दिया है, आपने जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट की आपने एग्जांपल दी है, तो मैथ्स में वो चीज़ पॉसिबल है। स्पेशली जब क्विज और असाइनमेंट इस एलएमएस के थ्रू होते हैं, तो उसमें जो चीटिंग वाला कॉन्सेप्ट है, और स्पेशली असाइनमेंट के टाइम तो बहुत ज़्यादा होती है, क्विजेज में भी जो है स्टूडेंट कर जाते हैं। तो उसमें इस तरह के सब्जेक्ट में लेट्स से मैथ्स हो गया, स्टैटिस्टिक हो गया, उसमें तो पॉसिबल है। अब जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स है उसमें हर एक के लिए अलग से मतलब कि क्वेश्चंस डिजाइन करना या फिर डिफरेंशिएट करना, ये बहुत मुश्किल हो जाता है। प्लीज आप इसके बारे में सर आपकी क्या राय है?
अच्छा, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन आपने किया कि ठीक हो गया जी, फिज़िक्स में आप कुछ ऐसा कर सकते हैं, लॉजिकल क्वेश्चंस असेसमेंट लेके आ सकते हैं, मैथमेटिक्स में ला सकते हैं, लेकिन थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स के अंदर क्या किया जाए? तो इसके भी अगर प्रॉपर्ली अगर हम देखें तो ऑनलाइन एजुकेशन के अंदर ऐसे सब्जेक्ट्स के लिए वहाँ पे सॉल्यूशन 2 टाइप के होते हैं। एक तो ये होता है कि आप स्टूडेंट्स को ग्रुप क्रिएट करके फॉर एग्ज़ाम्पल 20 स्टूडेंट्स हैं या 40 स्टूडेंट्स हैं, तो आप 4-4 के 10 ग्रुप्स क्रिएट करके उनको डिफरेंट उनको असाइनमेंट्स दे सकते हैं। या दूसरा, अगर आप उनको ये चाहते हैं कि वो चीटिंग ना करें, तो आप एक जो डिस्कशन बेस्ड वाइवा है, उसको ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं कि बजाय उनके 10 पेजेस की असाइनमेंट देने के, आपको एक ऐसा थ्रेड या एक ऐसा उनके लिए जो असेसमेंट लेके आ सकते हैं कि वो लाइव आपके साथ एंगेज हों और उस बेस पे डिस्कशन की जा सके। या आप उनको ये कह सकते हैं कि ये ग्रुप बेस्ड जो आप कम्युनिकेशन है वो करके उसका एक लीडर जो भी होगा उस चीज़ को सबमिट करा दे। तो वो उसमें थोड़ा-सा ये चीज़ आ सकती है कि जैसे आप देखें कि क्लासरूम के अंदर थ्योरेटिकली सब्जेक्ट्स के साथ आप रिटन लेते हैं, इसी तरह आपके लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर 16 टाइप ऑफ क्वेश्चंस आप क्विज़ेज़ की सूरत में उसमें प्रिपेयर कर सकते हैं। और वो 16 टाइप्स से तमाम टाइप्स ऑलमोस्ट कवर कर लेते हैं, चाहे वो मैथमेटिकल इक्वेशंस हों या फिज़िक्स के आपके न्यूमेरिकल हों या आपके सिंपल सब्जेक्ट के मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चन हो सकते हैं या ऐसे टाइप क्वेश्चंस हो सकते हैं, सारी चीज़ें उसमें आपकी कवर हो सकती हैं। Ji, thank you so much. At the end, once again, I want to thank Mr. Shakil Ahmed and all the HODs who are here with us and all the participants. And let close the event with the closing remarks of Mr. Shakil Ahmed. मैं अपने क्लोजिंग रिमार्क्स में कुछ ये चीज़ें डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि देखें, मैंने जैसे पहले डिस्कस किया कि कुछ चीज़ें अवेयरनेस से आती हैं, कुछ जो है वो इमोशनली उस चीज़ को बिल्डअप करके आती हैं और कुछ फोर्सफुली आती हैं। मैंने 3 साल पहले आई वाज़ प्रोजेक्ट मैनेजर फॉर ई-एग्ज़ाम, ये जज़ान यूनिवर्सिटी में हमने ई-एग्ज़ाम लॉन्च किया, तो वो उसकी सक्सेस रेशियो हाई सक्सेस रेशियो गई। उसकी रीज़न ये है कि जिस वक़्त हमने डिस्टेंस लर्निंग के ऊपर ये इम्प्लीमेंट किया और वहाँ पे स्टूडेंट्स आए, लैब्स हमारी अपनी थी यहाँ पे, और लेकिन ऑनलाइन उनका एग्ज़ाम था, और जैसे कि तो उन्होंने अटेम्प्ट किया, तो बाद में हमने एक सर्वे किया। उसमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स का ये रिएक्शन था कि जो रिटन एग्ज़ामिनेशन होता है, उसके मुकाबले में ये ज़्यादा ईज़ी तरीके से अटेम्प्ट किया जा सकता है। एक मैं मज़े की आपको बात बताऊँ कि जो टीचर्स के लिए यहाँ पे फैसिलिटी है, ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम की, एग्ज़ाम सिस्टम की, उसमें एक टीचर थे इंग्लिश डिपार्टमेंट के, डॉक्टर उसामा उनका नाम है। तो आई हैव सीन कि वो एक लैब में बैठे हुए कुछ पेपर्स चेक कर रहे थे। मैं उनके पास गया, मैंने कहा ये ऑनलाइन सिस्टम हमने लॉन्च किया, तो ये आपने क्या किया? कहते हैं ये 100 मार्क्स का पेपर था, तो मैंने सोचा पता नहीं सिस्टम कैसा होगा, और 50% मैंने 50 मार्क्स का ऑनलाइन दे दिया और 50 मार्क्स का मैंने रिटन दे दिया। तो कहते हैं वो सर पकड़ के बैठे हुए थे, कहते हैं सारे टीचर एन्जॉय कर रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन एग्ज़ाम सिस्टम था, सारा वो अटेम्प्ट हुआ, मार्किंग हुई, ग्रेडिंग हुई, सब कुछ ऑनलाइन सिस्टम होके ऑटोमेटिकली जो रिजल्ट्स हैं, जो रिपोर्ट्स हैं वो जनरेट हो गई, लेकिन मुझे अब बैठ के ये सारे वन ऑन वन उसको चेक करना पड़ रहा है। जो आप कह रहे हैं ना कि 70% या 60% की एक्सेप्टेंस नहीं हो पा रही, एक्सेप्टेंस का प्रॉब्लम ये आता है कि कोई भी नई चीज़ है, चाहे वो डेवलप कंट्रीज हो या आपके अंडर डेवलप कंट्रीज हो, एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। मुझे अच्छी तरह याद है कि हमारे एक दोस्त जब पीटी सेल को बिल्कुल नया-नया उसको अपग्रेड किया गया टेक्नोलॉजी के साथ, तो वहाँ पे जितने भी पुराने एम्प्लॉइज़ थे, वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने उस चीज़ को यूटिलाइज़ नहीं किया था। जबकि नई यंग जनरेशन जो है, उसने ईज़िली उस चीज़ को अडॉप्ट कर लिया। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो रैंडम क्वेश्चंस हैं ऑन एग्ज़ाम, वो चीटिंग को रिड्यूस कर सकते हैं। उसके साथ-साथ अवेयरनेस के साथ-साथ कुछ देखें, एक चीज़ होती है आप विलिंगली किसी चीज़ को अडॉप्ट करते हैं उसके बेनिफिट को सामने रख के। एक चीज़ है कि आप अडॉप्ट करने जा रहे हैं कि आपके पास ऑप्शन ही कोई नहीं है। देखें, आपके पास अगर ई-लर्निंग को अडॉप्ट नहीं करते, और ये पैंडेमिक जैसे अभी भी थर्ड वेव पाकिस्तान के अंदर चल रही है, इंडिया के अंदर चल रही है, यहाँ सऊदी अरेबिया के अंदर चल रही है, वी आर नॉट, आई मीन लाइक दिस इज़ नॉट पॉसिबल टू ब्रिंग ऑल द स्टूडेंट्स ऑन द कैंपस, तो कोई और चॉइस है हमारे पास? नहीं है। फिर हमने ये देखना होता है कि आया इसके बेनिफिट ज़्यादा हैं
या इसके डिसएडवांटेजेस ज़्यादा हैं। तो फॉर श्योर ई लर्निंग 100% तो आपको डिलीवर उस तरह नहीं कर सकती, लेकिन अगर उसके 70 या 80% आप आउटकम्स ले पा रहे हैं तो इट मीन्स कि आप कुछ ना कुछ उससे बेनिफिट ले रहे हैं। मैं एक और एग्जांपल आपको दूंगा कि जैसे वी आर रनिंग कपल ऑफ प्लेटफॉर्म्स, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। उसमें मतलब मैं बाय प्रोफेशन तो ट्रेनर हूं, लेकिन बाय नेचर जो है वो ट्रैवलर भी हूं। तो ऑनलाइन एक हम वो सिस्टम भी लेके जा रहे हैं, दुनिया घूमना और लोगों को इन्फॉर्मेशन देना कि कौन सी जगह पे कैसे आपने पहुंचना है। तो इसी तरह ELT भी वन ऑफ दैट प्लेटफॉर्म। इसके अंदर हमने क्या, इसका हमारा एम है, वो क्या हमने एम रखा कि हम चैलेंजेस को एनालाइज करें, स्पेशली पाकिस्तान के हवाले से, क्योंकि हम पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। हम खुद एक अच्छे एनवायरनमेंट के अंदर उन चीज़ों को एंजॉय कर रहे हैं। तो चैलेंजेस को अगर एनालाइज करने के बाद उनके सोल्यूशन के ऊपर बात की जाए तो एटलीस्ट क्या होगा कि ये एक कदम आपका पॉजिटिविटी की तरफ है। मेरे वहाँ पे मैंने मैक्सिमम कंटेंट जो है वो उर्दू में रखे और डिफरेंट ट्रेनर्स को एक प्लेटफॉर्म के ऊपर इकट्ठा करके हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो हायर एजुकेशन की फैकल्टी है उसको ट्रेन किया जाए रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी और ई लर्निंग के हवाले से कि वो कैसे उसको बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये सारे सर स्टेप्स हैं। जैसे आपने अभी कहा कि हमारे पास रिसोर्सेज तो कम हैं, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको मजीद बेहतर करने की। तो ये चीज़ है कि बारिश का पहला कतरा है ये, और इसके साथ इसको अभी तो बहुत लंबा एक सफ़र है जो हमने इसमें गुजारना है। लेकिन आई बिलीव कि इंशाल्लाह एक दिन ऐसा आएगा कि हम लोग इसके समरात से मुस्तफ़ीद हो सकेंगे, इवन के अंडर डेवलप्ड कंट्री होने के बावजूद। एंड थैंक यू सो वेरी मच फॉर बीइंग मी। एंड आई बिलीव कि अगर कुछ भी पॉजिटिवली आप तक अगर बात पहुंचा सका हूं तो मैं आई थिंक सो मेरी तरफ से इतना ही है कि मैंने कोशिश ये की कि जो इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं और जो इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं दोनों को डिस्कस किया जाए। और जिस वक्त आप डिस्कस करते हैं पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी को, तो फिर उसमें सोल्यूशन कोई ना कोई निकल के आता है। Thank you so much. थैंक यू सो Thank you मच। everyone else. Thank you Allah.